और जब मेरी आवाज नहीं आ रही होगी एंड देन माई माइक इज ऑन म्यूट, तो उस टाइम पे कोई बच्चा लीड करेगा। बोलना है, रुकना नहीं है किसी को। ठीक है रविकांत, यू यू ये काम तू इनसे और करेगा। यस सर। गुड। सो फ्रेंड्स, today's topic is Make in India, its impact on the Indian economy, and then pros and cons of Make in India. So if I have to tell you about what is Make in India, Make in India यानी कि we have to produce the technology, weapons, or whatever we may call it, that we are importing from the other countries. So it was being launched by the government of India to promote manufacturing within the country. There are few important aspects of it, like it will help us in increasing the employment opportunities. It will create a lot of jobs. Employment rates will get reduced, and eventually it will help in improving the standards of living of the citizens of the country. Yes, sir. I'm agree with your point, sir. Also, I would like to add one point here that as Make in India itself is a good initiative which was created by the Indian economy. It would create an impact by enhancing its export out of the country, so that we were depending on our imports, especially from the countries who are developed. So, if we export our Make in India products, which are indigenous, it can create a good impact by export, and also it will boost our economy as well as in economy the GDP and everything which is required to become a developed country. So that is my point. Yeah, absolutely right. But according to the policy, India initiative in flagship program launched by the Indian government to in since 2014, it is the moot point of the policy, that's the boost the domestic manufacture and boost the manufacture and transform the India into global manufacturing hub, and also facilitate the investment and innovation, enhance skill development, protect intellectual property and infrastructure. So there, and also that's I adding some point, that's a growth rate of manufacturing sector 10 to 14% per annum. That's playing a prominent role all of the 100 millions of additional manufacturing jobs, as we see in the last year report and upcoming report of 2025 as my thoughts. Right, right. Well said by Ravikant. And I want to add some points. Like, if if the government of India, there are some incentives like Make in India, is very important in creating the stand of the India in the world, and also increase the value of India as compared to the world scenario. And one more thing I want to say that Okay, fine. Made in India always refers to the product assembled. Product always refer to the India, and it is a basically strategy to build our nation to be a self-reliant way of production, uh, such as the like economical factors, land, labor, capital, entrepreneur, and technology also. Yes, Ravikant, you're correct. You have mentioned good points. Also, we mentioned that you mentioned the technology. Basically, to enhance the technology in each and every sector, including defense and other sectors. So we started making our technology by various steps by increasing the research and development, because we were the country who used to invest very less in research and development, especially compared to developed countries. So we started enhancing our
uh, enhancing our scope towards research and development, so that what has happened, that the technology which the technological advancement which was required to enhance our research and development was at a greater extent. I will have to also add on that the government of India has taken a very good initiative in the Make in India, uh, because because due to this Make in India, we will come to know what skills our people also have, instead of doing things in the foreign countries. More new skills will be boosted up. More there will be more manpower, and more things will be known to us. Gentlemen, there's a big issue that we face early. That's the capability of workforce, like how to manage the education, also training, and like a improvement of productivity and create more jobs. It's a adversity for upcoming challenge for government, and with uh, also with uh, also with high value sectors. रविकांत, यहाँ पे पता है Yes, क्या sir. हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे ये हो रहा है कि अ, हम लोग बोल तो रहे हैं, बट हम लोग बोल रहे हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग द मेन थिंग मैंने बोला कि मेक इन इंडिया क्या है। पहले तो तुम मेक इन इंडिया के बारे में बात करो कि है क्या, कब आया, डेट्स। यहाँ पे अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो आई एम टेलिंग यू, 10-11 एसएसबी देने के बाद ये सीखा है कि यार डेटा तुम्हारा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि मेक इन इंडिया के बारे में अगर बात करी जा रही है, अगर तुम को भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ से अलग डेटा भी तो देना पड़ेगा। सर मतलब फिर मतलब कंटेंट कैसे होना चाहिए, मतलब थोड़ा आइडिया, जैसे आपने बता कंटेंट दिया पहले इंट्रोडक्शन, तो उसके ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, मतलब थोड़ा रफली आइडिया। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज इसको यूज कर रही हैं, कब आया था मेक इन इंडिया, व्हेन डिड मेक इन इंडिया, तो कब मोदी जी ने लॉन्च किया, करंट गवर्नमेंट ने कब किस डेट को लॉन्च किया, वो स्कीम कब लॉन्च हुई। ठीक है, ये डेटा फैक्ट एंड फिगर्स पे खेला करो। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा, मतलब जैसे अगर बीच में बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा या आप बोलोगे तो थोड़ा रफ अच्छा लगेगा नहीं ना सर, तो पूछने का तरीका कैसा होना चाहिए? पूछने का तरीका मतलब मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन टाइप का। डिस्कशन इज अ डिस्कशन, यू आर पुटिंग फॉरवर्ड योर पॉइंट्स, है ना। सो जनरली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट मेक इन इंडिया ऑफ government. This was the program that was being launched by government of India on 25th of September 2014. The main aim of Make in India was facilitating investment, fostering innovation, building best-in-class manufacturing infrastructure, and then making it easy to do business. Apart from that, it also supported skill development. एक तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, तुम लोगों के पास लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत है भाई। ये मैंने नोटिस कर लिया, तुम्हारी अंग्रेजी में भी बहुत दिक्कत है। ठीक है, तुमको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी नहीं है बहुत सारे बच्चों को, बहुतों का तो खाता ही नहीं खुला। आकांक्षा, यहाँ पे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ही आप रहें, अदरवाइज आप जाएं यहाँ से। ये केवल ज्ञान लेने वाली क्लास नहीं हो रही है, दिस इज अ पार्टिसिपेशन क्लास। यू कैन प्लीज ड्रॉप ऑफ दिस कॉल। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली रूल। ये आसूस से कौन बच्चा ज्वाइन हुआ है? संदीप, तू है क्या? No, sir. आकांक्षा, आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज पार्टिसिपेट। कुछ तो बोल, तुम चाहते हो अफसर बनना, बोल। तुम शब्द नहीं रहे मुंह से, कैसे बनोगे यार? इजी लैंग्वेज रखनी है, फैक्ट एंड फिगर्स पे खेलना है, डेटा देना है। भीड़ से अलग कैसे चमकोगे? तू बता प्रथम, भीड़ से अलग चमकेगा कैसे जब सारी जनता ही भिंडी बाजार बना रही है? तो तू कुछ ऐसा बोलेगा ना भाई, जब सारे शांत रहोगे। Yes, sir. एक पॉइंट दे रहा हूँ, जैसे मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया पे मान लो, अगर हम मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अब सबको पता है कि मेक इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि मैन्युफैक्चरिंग। किसी ने बोला मैन्युफैक्चरिंग पहली लाइन में? नहीं बोला। अब मेरा तो मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट है, तो मेरे को तो मैन्युफैक्चरिंग ही मुंह में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग को करना है देश के अंदर। मेक इन इंडिया यानी कि भारत में बनाओ, बाहर बेचो, अंदर भी बेचो, बाहर भी बेचो। ठीक है, अब इससे क्या होगा?
अब सुन लो, फिर उसके बाद कुछ पॉइंटर ऐड करना। नौकरियां बढ़ेंगी, भारत में बनेगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट विल क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल गो डाउन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंप्रूव, है ना। अब यहाँ पे एक कौन ये हो सकता है कि स्किल की कमी है, अब उसके लिए फिर गवर्नमेंट की एक और स्कीम चलती है, स्किल इंडिया, वहां पे तुम बोल सकते हो। अब तुमने मेक इन इंडिया में स्किल इंडिया को भी जोड़ दिया, तुम्हारे पास और पॉइंटर आ गए फिर, है ना। स्किल गैप जो है वर्कफोर्स के अंदर, अभी भी स्किल गैप है, बहुत सारे लोगों को काम करना नहीं आता, मेक इन इंडिया में वो काम भी करेंगे तो स्किल गैप है, तो उसके लिए सरकार ने एमएसएमईज के साथ मिलकर स्किल इंडिया लॉन्च करा हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, तुम लोग अफसर बनोगे, ठीक है। अब जब what will happen when manufacturing will happen inside the country, माल बनेगा तो माल बिकेगा भी। अब जब माल बिकेगा तो ओवरऑल पैसा आएगा देश के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी देश के अंदर, ठीक है। पर इसका कौन ये है कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा जब सेटअप होंगी, कि व्हाट इज द कॉन, मैंने प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करी, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स बोथ। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इन्वायरमेंट पे उसका थोड़ा सा खतरनाक असर पड़ेगा, तो तुम कोई भी बच्चा उस कॉन को ऐसे भी बता सकता है कि कोई भी बच्चा उस कॉन को ऐसे भी बताएगा कि eventually it will also led to environmental rapid industrialization will happen due to make in India, but we have to ensure that environmental degradation is not happening. We have to ensure that environment is also protected, it is also maintained sustainably, कि हमको प्रकृति को भी ध्यान में रखना है, ग्रोथ तो देखनी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मेक इन इंडिया होगा, जब हम देश में बनाएंगे, तो एक और चीज इसमें होगी, कड़ियां जुड़ती हैं बच्चों। एक और चीज जो इसमें होगी, दैट विल बी कि इट विल आल्सो अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा एफडीआई क्या होती है। कितने लोगों को पता है एफडीआई क्या होती है? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एफडीआई? वेरी लेस, वेरी लो नंबर ऑफ पीपल नो। डेटा, you need you need knowledge to participate in group discussions, ठीक है। यू नीड, अब मेरे को रिजुल ने पूछा था, रिजुल इज नॉट हियर इन टुडेज क्लास, कि सर जब बिल्कुल ही टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा कोई टॉपिक पूछा ही नहीं जाएगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक आपसे पूछा ही नहीं जाएगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। समझ आ रही बात? तो 10-15 मिनट और है सेशन के अंदर, तो मैं तुमको ये बोलाऊंगा कि अब एक आज के सेशन से अगर तुम कोई चीज़ लेके जा सकते हो, देखो एग्जाम पास करना एक चीज़ है और एसएसबी में इंटरव्यू में सेलेक्ट होना, रिकमेंड होना एक दूसरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। until and unless you're not able to communicate well, you will not be able to make it there. Until and unless you have data, you have fact and figures when you're speaking. रिटन एग्जाम तो तुम 6-7 महीने रगड़ा पट्टी करके पास कर लोगे यार, मैं पढ़ा ही रहा हूँ रिटन के लिए, तो उसके बाद क्या, वहां तो खुद के दम पे जा रहे हो, वहां पे तो मुंह खोलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक होता है जिसको कुछ नहीं आता, वो वैसे भी शॉर्ट शॉर्ट केस ऑफ स्क्रीन आउट है। एक बच्चा है जिसको आता तो है बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसका चांस रहता है कि या तो वो स्क्रीनिंग हो जाएगा या नहीं होगा, वो भी मेजरली स्क्रीन आउट ही होता है। एक बच्चा है जो बैलेंस्ड बच्चा है, तुमको बैलेंस्ड बच्चा बनना है। और एक उसके भी हाई लेवल का है जो एकदम अंग्रेज है, जो बोलता है तो भाई साहब सारी सुनती है जनता, पर वो भी डेटा की कमी की वजह से मात खाता है। बट एक बैलेंस्ड बच्चा है, उसको पता है कि मेरे को अपना पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा करना है, मुझे ग्रुप डायनामिक्स को मेंटेन करते हुए ज्ञान भी देना है, नॉलेज भी देनी है, सारे लोगों को अपने फेवर में भी करना है, मुझे इंप्रेशन मैनेजमेंट भी करना है। इंप्रेशन मैनेजमेंट ऐसा क्यों होता है एसएसबी के अंदर कि 5 बार 5 दिन वहां रहने के बाद एक बच्चा रिकमेंड होता है और वही बच्चा सेम बच्चा रिकमेंड होने के बाद स्क्रीन आउट भी हो जाता है, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू पोर्ट्रे दैट ही पोर्ट्रेड इन द लास्ट वन। और ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा रिकमेंड हो रहा है तो वो बार बार जितने भी बोर्ड में जा रहा है रिकमेंड हो रहा है, बिकॉज उसने वो मेंटेन कर लिया लेवल। समझ रहे हो? कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है। सर का पॉडकास्ट आया है मेरा, शिवेंद्र सर का, देखना उसको, उसमें एक चीज मैंने ये वाली चीज हुई है। हर चीज को बोलने का तरीका होता है, तरीके से बोलोगे तो सामने वाला वैसे भी कन्विंस होगा।
ठीक है, अब तो भी नॉलेजेबल यार, पढ़ाई किया करो। मेरे जितने भी करंट इवेंट्स के रिसेंट अफेयर्स की वीडियोस आते हैं सब देखा करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, और मेक इन इंडिया पे सुन लो भाई से। मेक इन इंडिया से और क्या होगा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोगों का पैसा भारत में लगता है, वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं ताकि सपोर्ट उनका बिजनेस, मतलब पैसा फ्यूज करते हैं, उसकी वजह से पैसा आता है और टेक्नोलॉजी आती है देश के अंदर। पर एफडीआई का पैसा, बेटा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, इधर आओ। जब एफडीआई का पैसा आता है देश के अंदर तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज भी आती है। मेरा बेटा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। हाँ, जब एफडीआई का पैसा आता है तो फिर इकोनॉमिक, हाँ, तो इकोनॉमिक, बैठ जाओ बेटा, तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी भी आती है कि अगर मान लो बाहर रिसेशन है तो उसका असर देश पे भी होगा। ठीक है, अगर बाहर रिसेशन है तो उसका उसका हमारे देश पे भी असर होगा, है ना। एफडीआई के बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। जब नई फैक्ट्रीज बेटा बनेंगी, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे, जब तुम्हें मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, इंडस्ट्रियल पार्क बने। ठीक है, और पावर सप्लाई भी बढ़ेगी, नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे भी काम किया जाएगा, तो देश में इवेंचुअली एवरीथिंग विल ग्रो। तो मैं कड़ियां जोड़ रही हैं। अब ये जो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक चीज होगी सबसे बड़ी, वो होगी पता है क्या, कि पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, है ना। तो मेक इन इंडिया की ग्रोथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम लोग ये भी बोल सकते थे कि सर अगर मेक इन इंडिया हो रहा है तो हमें इन सारी चीजों को वो करने, अभी यूपी में अमेठी के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बनाया, वहाँ पे AK-203 राइफल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर तुम न्यूज पढ़ रहे होते और तुमको ये नॉलेज होती, तुम चिपका सकते थे ये पॉइंटर कि वी ऑलरेडी नो देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑन राइज, वेरियस डिफेंस कॉरिडोर। तुम डिफेंस एस्पिरेंट हो तो डिफेंस से रिलेटेड एग्जांपल मार दो। तुमको पता होगा कि अपाचे का और जो C295 अपाचे का जो कॉकपिट बनता है आज की डेट में, वो टाटा TASL बना रहा है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया। ब्रह्मोस बनाते हैं हम अपने यहाँ, बाहर बेचते हैं, मेक इन इंडिया का एग्जांपल है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। और मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा फायदा डिफेंस के लिए, हम भारत में ही हथियार बनाएंगे तो हमें बाहर के देशों से नहीं लेना पड़ेगा माल। रसिया यूक्रेन वॉर है, रसिया से हथियार 50% लगभग हम खरीदी करते हैं, उसके बाद हम फिर यूएस पे डिपेंडेंसी है हमारी, फिर फ्रांस वगैरह, है ना। अगर मान लो वो सामने वाला देश हमें हथियार देने से मना कर देगा और हमारे यहाँ पे जंग लग गई, क्या करेंगे आप, यू विल बी पैरालाइज्ड। इसीलिए करंट गवर्नमेंट इतना ज्यादा एम्फेसिस देती है मेक इन इंडिया पे। क्लासिक एग्जांपल दे सकते थे गगनयान, अभी रिसेंट का था, लास्ट टॉपिक वही था हमारा GD का, कि वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव रिसेंटली लॉन्च इसरो का मिशन कॉल्ड गगनयान। टाइम भी हमारा, रॉकेट भी हमारा, लोग भी हमारे। मेक इन इंडिया का क्लासिक एग्जांपल है। LCA तेजस मेक इन इंडिया का क्लासिक एग्जांपल है। एक AK-203 बन रही है, ठीक है, धनुष आर्टिलरी गन है। हमने अभी प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाया है, फाइटर हेलीकॉप्टर, क्लासिक एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया, डिफेंस से रिलेटेड है। तुम लोग बोलते, तुम लोग सोचते ही नहीं उस लेवल पे जाके। सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। रट्टू तोते मत बनो, दिमाग को खोल के पढ़ाई करो, दिमाग को खोल के सिलेक्शन लिया जाता है। ठीक है, यस दाजी, बोल, तू बोल। ये सर, आपने सर अभी जो एग्जांपल्स एग्जांपल्स बताए थे ना, ये तो हम्म, मतलब हम जेडी के स्टार्टिंग में भी बोल सकते हैं या फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद बोल सकते इंस्ट्रक्शन हैं देने के बाद ऐड आफ्टर हुई, आप बोल दिए। एक चीज ना, एक चीज और याद रखना कि GD में यू हैव टू बी अर्ली स्टार्टर, है ना। अर्ली स्टार्टर बनने की कोशिश करो और तरीके से बोलना है आपको, ग्रुप डायनेमिक्स को मेंटेन करते हुए अच्छे से बोलना है। बात समझ में आ रही है। ये हो गया। तो बीच में अगर किसी ने बोला, लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि यार इफ यू हैव टू लाइक सी कि लास्ट वाला बच्चा कैसे करेगा, मतलब लास्ट वाले बच्चे ने वो होगा, ठीक है। तो इस आधे घंटे की क्लास से तुमको मैं आधा अफसर वैसे ही बना दूंगा, अगर तुम मेरे को फॉलो करते हो केवल 1 महीने। आई विल मेक यू प्रो इन योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन।
इस चीज़ पे साथ साथ काम करो। उस बच्चे को मैं हमेशा ये ऐसे और कर सकता हूँ, जो भी बच्चा इस क्लास में आएगा 5 से 5:30 वाली, 5 से 5:40, अभी तो आज 2-4 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, तो दैट पर्सन विल बिकम अ प्रो। मैं अगली क्लास से मैं प्रैक्टिस फॉलो करने वाला हूँ। आज 5 मार्च है। आई विल गिव यू अ टॉपिक, ठीक है? एक टॉपिक पे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं उस पर जीडी करेंगे, और जो भी रिसेंट न्यूज़ की चीज़ें हैं मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा, डॉक फाइल बनाऊंगा, ठीक है? आई विल मेक अ पीडीएफ एंड डॉक फाइल। वो डॉक फाइल मैं तुमको दूंगा, जैसे आज कल के जीडी की आज रात में दे दूंगा, समझ रहे हो? उसको तुम लोग पढ़ना, और उस पे तुमको जो चीज़ें मैं बताता हूँ कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, पहले इन अर्ली स्टार्टर बनो, इनिशिएट करो। प्रथम बोलता है भैया मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रथम ने स्टार्ट किया। ओके जेंटलमैन, टुडेज टॉपिक इज मेक इन इंडिया, द प्रोस एंड कॉन्स। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाई गिव इन एग्जाम्पल। यार तुम कुछ ऐसा बोलो ना भैंस की आंख, सारे बंदे शांत होकर सुनो रहे, यार वाह यार क्या बोल गया। मैंने मान लो ऐसे जीडी स्टार्ट किया, और जेंटलमैन यू नो ऑल ऑफ अस नो अबाउट द रीसेंट गगनयान मिशन, एंड दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया। अब सोचो, तुम तो चमक गए भाई, जीटीओ लिख लेगा, अरे वाह यार क्या बच्चा है, इसके नंबर दो इसको। उसके बाद तुम फिर निकाल रहे हो डेटा, तो आधे बंदों की वैसे ही फट लेगी। अरे यार उन पे आ जाएगा प्रेशर, दे विल बी इन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उनको, अरे यार इसने तो भाई ये तो ले गया एज। एज लेनी है यार वहां पे जाके, समझ रहे हो? इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ा करो, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सुनो। तुम्हारा मैं 2 अखबार पढ़ता हूँ रोज, एक ये और एक ये, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है? इस टैब के अंदर कोई भी बकलोली वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ना कोई गेम है ना कुछ है, इसमें केवल काम होता है। इसका पेन यूज करता हूँ केवल इसमें, और यूट्यूब का स्टूडियो डाल रखा है ताकि मैं डेटा एनालिटिक्स चेक करूँ अपने चैनल की। और मैं जितना भी पढ़ाई का काम करता हूँ सारा इस पे करता हूँ। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करो अपने आसपास, केवल उन चीजों के दौरान पढ़ना है केवल। तो दिस एक पॉइंट लिख लो अगर कहीं लिखना चाहो। इंप्रेशन मैनेजमेंट, एक टर्म आज सिखा रहा हूँ, और ये टर्म लाइफ टाइम काम आएगा तुम्हारे। इंप्रेशन मैनेजमेंट कैसे करना है। किसी भी कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में कभी फेल नहीं हुआ था, नेवर एवर आई गॉट फेल्ड इन एनी कॉर्पोरेट इंटरव्यू, बिकॉज आई प्रिपेयर्ड लाइक एनीथिंग बिफोर। तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो थोड़ा आवाज मेरी ऐसी आ रही होगी। कॉर्पोरेट की किसी भी इंटरव्यू में तुम्हारा भाई फेल नहीं हो, बिकॉज मैं पहले से तैयारी करता था। कोई जॉब रोल था उसकी, उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरे को नहीं आता, मैं रात में पढ़ देता था। शिवेंद्र सर का पॉडकास्ट, मैं सोया नहीं रात भर। साहिल होता तो साहिल से पूछते, रात भर नहीं सोया था भाई, 30 घंटे से ज्यादा मैं जगा हुआ था लगातार। एंड दैट पॉडकास्ट टर्न आउट सो गुड। तुमने तो देखा है वो लाइव, उसका पार्ट 2 आएगा, फ्राइडे डाल दूंगा, एडिटिंग कर रहा हूँ उसकी भी। इंप्रेशन मैनेजमेंट सीखो। इंप्रेशन मैनेजमेंट पे मैं चाहूंगा कि तुम लोग रिसर्च करो कि भीड़ से हटके आप कैसे काम करोगे। लीडर क्या है? लीडर भीड़ का हिस्सा नहीं होता ना, लीडर तो भीड़ के आगे खड़ा हुआ है। कल मैं आर्टिकल 370 देख के आया, उसमें वो वाला इंसिडेंट था जब वहां पे पत्थरबाज पत्थर फेंकते थे, देयर वाज अ मेजर ऑफ आर्मी जिसने उनके लीडर को ही साले को जीप के आगे बांध दिया था। याद है वो इंसिडेंट, कि जीप के आगे बांध दिया था पत्थरबाजी को रोकने के लिए? वो कितना वायरल हुआ था इंसिडेंट। और उसके बाद वो पत्थरबाजी तुरंत बंद हो गई। उनकी लिंचिंग हो जाती भाई, मॉब लिंचिंग हो जाती उनकी अगर वो ये नहीं करता तो। दैट इज हाउ द लीडर्स थिंक, टू थिंक डिफरेंट। एप्पल जो कंपनी है, दिस एप्पल, व्हाट डज द एप्पल डू? एप्पल थिंक डिफरेंट। एप्पल ने सोचा था कि आईफोन के अंदर ये डायगोनल गोल कैमरे बना देंगे हम। ये आईफोन 13 है, ठीक है? अब ये है, फिर उन्होंने बोला कि ये XR सीरीज में ये नॉच आती थी बड़ी वाली, इसको छोटा कर देंगे हम। उन्होंने आईफोन 14 सीरीज लाए वो लोग, 14 सीरीज में उन्होंने कहा डायनामिक आइलैंड लाएंगे। अब ये कंपनियां इसको वो करती हैं, कंपनीज फॉलो एप्पल। उसने लीड ली, इट इज अ लीडिंग ब्रांड। इतना वैल्यूएशन है जितना 10 कंपनियों का अकेला का वैल्यूएशन नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यार, जैसे I'm गिविंग एग्जांपल। लीडर क्या करता है? लीडर, उसको कभी कोई सरपास कर ही नहीं पाता, बिकॉज ही इज अ लीडर एंड ही थिंक्स डिफरेंटली। वो कुछ ऐसी चीजें कर देता है जो कॉपी तो करने की कोशिश करेंगे पर उससे आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसे सोचा करो। तो सिंपल सी बात है, ग्रुप डायनामिक्स में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है भाई और बहनों, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो,
कल के जीडी में हम जुड़ेंगे, अभी सेशन खत्म हो रहा है। इंप्रेशन, मैं चाहूंगा एक चीज पे रिसर्च करके आना, इंप्रेशन मैनेजमेंट, एंड अपनी ओपनिंग स्ट्रॉन्ग करना। मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें आज सिखाई, ठीक है। यू ऑल ऑफ यू लैक डेटा, डेटा की कमी है। तुम ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते, तुम बिल्कुल कर सकते हो, बहुत बढ़िया, डेटा की कमी है बस। इंप्रेशन मैनेजमेंट पे यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज हैं सारी देख के आओ, हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, है ना, हाउ टू बिकम अ बेटर पब्लिक स्पीकर। कोई टेडएक्स देख लो, कुछ टेडएक्स भेजूंगा तुम लोगों को ग्रुप पे, देखना उनको, ठीक है। इनिशिएशन कैसे करना है, स्टार्ट में कैसे चमकना है, भीड़ से अलग कैसे करना है, वो चीज सीख के आओ, और कल उसका लाइव एग्जांपल मैं तुमको दिखाऊंगा यहाँ पे फिर। डन, ठीक है। कल भी मेक इन इंडिया पे ही करेंगे, कल मेक इन इंडिया पे पूरा डॉक्यूमेंट बना के दे दूंगा रात में, कब क्या कहानी हुई, क्या क्या क्लासिक एग्जांपल्स है, एंड देन ऐसा नहीं कि केवल उसी पे रहना है, उसी पे चिपका रहना है, वही रट्टा मार दिया उसका, अपना भी दिमाग यूज करना है। अब मैं ये देखूंगा कितने बच्चे मेरे डेटा देने के बावजूद अपना दिमाग यूज करेंगे, एंड देन दे विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और कल के बच्चे, कल मेरी तरफ से आई विल ब्रिंग इन सम रिवॉर्ड फॉर दिस। जो भी बच्चा सबसे बेस्ट पार्टिसिपेट करेगा, एंड उसके लिए मैं एक रील बना के भी डाल दूंगा कि कुछ ना कुछ उसको मेरी तरफ से मिलेगा, जो बेस्ट पार्टिसिपेंट होगा, ठीक है। 4-5 दिन तक लगातार, तो इस पे काम करना है, ठीक है। हो जाएगा इतना काम। बोलना है तो इम्पैक्टफुल बोलना है, ठीक है Yes, बस। sir. यस, किसी को कुछ बोलना था। और दाजी, रविकांत और दाजी विल बी लीडिंग दिस। अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो प्रथम विल लीड दिस, प्रथम भी नहीं होगा तो वैष्णव विल लीड दिस, और तब ये भी नहीं है तो कुलदीप विल लीड दिस। ओनरशिप लेना सीखो जीवन में, सबको मौका मिलेगा मॉडरेट करने का जीडी को। कोई ऐसी चीज दूंगा तुम लोगों को जो भी बेस्ट परफॉर्मर होगा, जो काम आएगी जीवन में तुम्हारे, और याद रखोगे भाई को कि सर ने कुछ दिया था ऐसा, ठीक है। तो यही है, इंप्रेशन मैनेजमेंट पढ़ के आओ, अपना नॉलेज अच्छा करो, यूट्यूब पे जितनी वीडियो खोद डालो मेक इन इंडिया पे। कल मेक इन इंडिया पे सबसे बेस्ट जीडी अपन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, जय हिंद, शुभ रात्रि। क्लास के बच्चे जय मोस्टली हिंद सर। से क्लास में मिलता हूँ। क्लास तो होगी सर। हाँ हाँ, फिर ठीक है सर। और टेस्ट भी है भाई, तभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा, तो उसको भी देना। चलो मिलते हैं भाई, Yes, sir. ओके। ओके, जय